right? Always remember this, okay? Because there's an involvement of the bank also in this bill of exchange, okay? Drawing in pen of pay cannot be same in promissory note, but in bill of exchange, yes, Yatharth, you want to ask something? Oh, no, ma'am. Sorry, ma'am. I had raised my hand when you're talking about banking ombudsman integrated, na. So I have to tell that another scheme launched by RBI, that is RBI Retail Direct scheme. Yeah, today Honorable Prime Minister had inaugurated the same, right? Yes, ma'am. Ma'am, a good step towards when if any people, if any number of people want to invest in something, so they can directly invest by opening the account with the RBI See, I security. feel so glad that you guys are reading newspaper, right? Because आजकल न्यूज में मतलब अभी तो खैर prosperity is there, everything gold भी अब थोड़ा is at शादियां आ गई हैं तो गोल्ड भी भाव भी बढ़ रहा है, नायका भी बहुत न्यूज में मैम है नायका अभी, ने तो राइट? मैम कमाल ही कर दिया, मतलब 1 लाख करोड़ की वैल्यू हो गई मैम। नायका की लेडी को कितना वो हो रहा है, वो आपको पता है? आई एम अहमदाबाद से करके शी वाज जस्ट अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, और मैं कल भी आपको ये डिस्कस कर रही थी, और इनफैक्ट इसके अंदर था ना जो आलिया एंड कैटरीना, दे हैड हाँ आल्सो मैम, उनको इन्वेस्टेड आईपीओ लग रिटर्न्स गया दे आल्सो मतलब। गेट, राइट मैम मुस्कान? आपने अप्लाई किया था? नहीं नहीं बेटा, मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं जिस चीज में डालू कभी नहीं निकलता। मुझे है मुझे भी अलॉट नहीं हुआ मैम, मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, China releasing shocking news. What sense it border लगता है? What? China wants to that Prime Minister Jinping. They want. Your voice is not audible. Actually, it's lagging. My network is not good, man. अच्छा, ऐसा ओहो, मैम क्या आप हाँ बेटा अभी बताएंगे, प्रॉमिसरी नोट और ये सब तो अभी चलेगा। I'll show you also, right? Just a beginning, not an issue. मैंने आपको इसके ना एक चीज ये भी बताई थी, आपने प्रॉमिसरी नोट का ये देखा था बेटा, that I promised to pay, ये वाला कल आप क्लास में थे बच्चा? तो तभी तो क्लास में नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? See, this is an example. See on your screen. Rupees 6,000. I promised to pay Mr. Smith or order the sum of rupees 6,000 only, together with interest at 9% for the value received. Right? So that is basically the example of the promissory note. like in return में हमारे Yes, see, everything is there. Muskan, you are attending class for the first time, बच्चा? सेकेंड टाइम। मुस्कान कहाँ थे आप इतने टाइम तक? हम तो स्टार्टिंग से ही ये बात कर रहे हैं। क्या मुस्कान? मैम आपके लेक्चर्स मैंने मांगे हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांगे हैं। तो अभी आपने बैंकिंग चेंज किया है या फिर आप कौन से कैंपस से हो बेटा? जीसीआर से? अच्छा, जीडीजी से है। तो अभी चेंज किया है स्पेशलाइजेशन, कुछ ऐसा है या लेट ज्वाइन किया था बच्चे? नो मैम, मेरी जॉब लग गई है तो उसके साथ साथ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अरे वाह मुस्कान, एंड वेयर आर यू वर्किंग? ओके, इन which company? Okay, so great. So Muskan, ये तभी समझ में आएगा because basically the lectures are interlinked, okay? And we had around, as far as this 8 plus 9, I suppose we are having 17 lectures, okay? So I just request you to listen, okay? And then if you have any doubt you may ask, right Muskan? Okay bacha.
So now we'll see to this. We'll show you video also, everyone. Don't worry. So there are two parties, drawer and pay. There are three parties, drawer, drawee and pay. ठीक है? Drawer and pay cannot be same here. Drawer and pay can be same. Bill of exchange. ठीक है? प्रॉमिसरी नोट को ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए और इसको एक्सेप्टेंस चाहिए. बिल ऑफ एक्सचेंज बिना एक्सेप्टेंस के इट इज हैविंग नो वैलिडिटी. जो मेकर है उसकी लायबिलिटी जो है वो प्राइमरी है. ड्रॉई लायबल है पे करने के लिए, मतलब यहाँ पर ड्रॉई की जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है. ठीक है? सो मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट स्टैंड्स इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पे. और जो मेकर है, ठीक है, of the accepted bill, मतलब obviously the bill of exchange बिना acceptance के तो कोई relevance ही नहीं लगता. Okay, the maker or drawer of the accepted bill stands in immediate relations with the acceptor and not the pay. So just a second, I'll just check out की है क्या and then we'll start. यहाँ पता चलेगा drawer कौन है, drawee कौन है. See, NI must be in handwriting. Possessor है. ओरल नहीं हो सकता है ना कभी. पोजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन? मैम होल्डिंग. सो अगर मेरे पास है तो मैं ऑनर हूं, और अगर इफ द यथार्थ इज हैविंग यथार्थ इज ओनर. व्हाट इज कंसिडरेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर एनआई में कंसिडरेशन की बात नहीं की जाती तो इट्स वेन. मैम कंसिडरेशन मतलब मैम समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर आपको पेमेंट मिले तो कंसिडरेशन उसको दूसरे वाले पार्टी को जाएगी. नो. हाँ मतलब इस तरह से. Suppose see, I am teaching you and I am getting salary. Suppose, so that is a consideration. मुझे बदले में क्या मिल रहा है? Yes, ma'am, वही बदले. आप कोचिंग ले रहे हैं, मुझे सैलरी मिल रही है. अगर गिफ्ट्स हो, डोनेशन हो, क्या वो कंसिडरेशन है? नहीं है. यू कांट से कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे इमोशनल शांति मिल रही है. लेकिन हाँ, डोनेशन करते हो और अगर आपको डोनेशन के लिए अगर इफ यू विल गेट अ रिबेट ऑन इनकम टैक्स तो क्या वो कंसिडरेशन है? यस मैम, बिल्कुल है. समझ में आया एवरीवन? कंसिडरेशन क्या होता है एवरीवन? ये मत बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिपीट. ओके विशाल, कंसिडरेशन में मींस व्हाट यू विल गेट इन return. Suppose I am teaching you, I am getting a salary. Consideration. You are purchasing a goods and you are giving money to someone. Consideration. You are taking tuition. The tuition teacher is taking fees. Consideration. समझ में आया विशाल? It's clear? Now HIDC. ये इतना छोटा सा लिख दिया. HIDC अलग से बात करेंगे, लिख लीजिए. I'll show you the video of holder in due course and payment in due course. Holder in due course अभी आप छोड़ दीजिए, ये इतना सिंपल नहीं है. और negotiability means transferability. मैम होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको पूरा चार्ट बना के बताना पड़ेगा, तो बड़ा. इस पर मैंने अपना पूरा वीडियो वैसे बना रखा है, राइट? होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनआई के पास है. विल शो यू द एंटायर वीडियो. ओके, and what's the difference between holder, who is holder in due course. जैसे बोला जाता है सिंपल, अगर मैं अभी के लिए अगर एग्जांपल के लिए बोलूं, A has given instrument to B and B has given to the C, and suppose B has taken from A by unlawful means चोरी करके उसने ले लिया इंस्ट्रूमेंट. ओके, but C is HIDC because he has taken that instrument in consideration, plus he does not know that the check is a stolen check. He has paid a consideration on that. So he gets a good and effective title. So that is HIDC. क्या कभी किसी ने पढ़ा है HIDC? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it the same? What I am saying, HIDC? Yes, ma'am. Holder in due course का वही मतलब है, क्योंकि Right? पीछे वाले पार्टी के हमें वो नहीं पता रहता कि मतलब वो स्टोलन है क्या है, कैसा है. लेकिन जो प्रेजेंट होता है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स प्लीज लिख लीजिए. आई रिक्वेस्ट एनीवन टू प्लीज राइट. इवन राखी, राइट, एक बार लिख ले अपने पास. विल एक्सप्लेन यू. ओके, ड्रॉअर. द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ द एक्सचेंज इज कॉल्ड अ ड्रॉअर. जो बनाता है. ड्रॉई, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे द मनी. अच्छा एक चीज बताइए, चेक में सपोज
मेरा चेक है एंड आई एम पेइंग टू यथार्थ, फॉर एग्जांपल, तो मैं कौन हुई? हु एम आई? मैम पे कौन हुई? ड्रॉयर मैम पे ही तो मैं हूँ मैम, ड्रॉयर ड्रॉवर। ड्रॉवर ड्रॉवर। एंड दिस चेक इज ऑफ ICICI एंड आई एम पेइंग टू यथार्थ। ICICI क्या हुआ? पे नो। मेकर ड्रॉई मैम अरे ड्रॉई 2 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूजन ही क्लियर करो। अब ये नहीं पता तो क्या हो रहा है ये। मैम वो तो मैम जो चेक वाला सिलसिला है वो तो मैम वो तो इश्यूअर होगा बैंक, तो ड्रॉअर आप होगे और पे ही मैं हूँगा अगर मेरे पास चेक है तो। अगर आपने अगर बेयरर चेक है तो किसी और के पास है तो वो पे ही बन जाएगा, और अगर मेरा नाम लिखा है तो मैं ड्रॉ ही बन जाऊंगा, मैं पे ही बन जाऊंगा। तुम तो ये देखो, दिख रहा है ये वाला छोटा सा लग रहा है, ड्रॉअर सम प्रसाद 25,000 का चेक टू मिस्टर ऋषिराज। ऋषिराज इज पे, द पर्सन हु गेट्स, पर्सन हु कट्स द चेक। काटा हिंदी में बोलते हैं कितने का चेक काटा तूने? 25,000 का। दिस इज ड्रॉअर, राइट? एंड द बैंक IDBI का चेक है, IDBI इज ड्रॉई। समझ में आया? यू गेट इट? यस और नो? Yes, ma'am. Right? So drawer, ones who sign, pay, in whose favor the check is signed. The bank जिसका check है, that is drawee. Right? All confusions clear? Everyone? यस मैम अब वो कहाँ गया तुम्हारा? NI, वो 4 NI. Then okay, then this is about check. I'm just checking. We are on slide 13. Then parties, then features, okay. Then check और इसमें होगा, okay. चलो. Check is an unconditional order also, right? So check is a bill of exchange draws on specifies bank and is not expressed to be payable on then on demand. मेरी ध्यान ढंग से सुनना. Is it true or not? All ये एक GD का टॉपिक बना था. GD क्या मतलब इंटरव्यू में पूछ लिया था. Can you please tell is it right or wrong that all checks are bill of exchange but all bill of exchange are not checks? दोबारा से. नो मैम. दोबारा से. May I repeat it? All checks are bill of exchange but all bill of exchange are not checks. Right, ma'am. Right. एक बार लिखिए. अरे शायद जितेंद्र की ही आवाज है जो लैग कर रही है. Can you please write all checks are bill of exchange but all bill of exchange are not necessary checks. Is it true or not? Ma'am, all checks are bills of exchange, but all bill of exchange are not checks. It is true, ma'am. Is it true? Is it true? True, Right. ma'am. So जिसको नहीं समझ में आ रहा हम कल डिस्कस करेंगे. This is a task for you. Please search ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है. ये एक इंटरव्यू में पूछा गया है, गवर्नमेंट बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरव्यू में पूछा गया. वो तो शुक्र है बढ़ाया हुआ था मैंने बच्ची को, तो शी सेड, और मैंने यही क्वेश्चन दे रखा था इनके पीरियोडिकल्स में 2 मार्क्स का. लकीली दैट
बैंक वो इंटरव्यू में पूछ लिया गया है एंड शी इज सो हैप्पी कि मुझे आता था. आज आपका काम होगा, आप जाकर देखेंगे, यू विल हैव टू सी दैट, राइट? क्योंकि मैं हर चीज अब स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगी. एज सिंपल एज दैट, राइट? So the features, it should be drawn on a specified banker. It should be dated, right? कल मैंने बताया था ना, all things must be, the 5 things must be certain. कौन कौन सी चीजें बोली थी मैंने? certain होनी चाहिए. मैंने ड्रॉ किया था कुछ कल. Yes, ma'am. Yesterday. मैम पहले तो आपने बोला था कि सिग्नेचर्स अमाउंट. Yes, signature, amount in words and figure. Amount in words and figure. Name. Yes, ma'am. And the cross check you have, ये तो आपने ऑप्शन में बताया था मैम. हाँ, और फिर मैंने बोला था डेट. हाँ, डेट. Yes, ma'am. Date. Right. Date should not be stale. Date should not be post dated. Right. Date should not be impossible. Predated. फिर हमने dates के लिए डिस्कस किया था. Right. So it should be dated, possibly dated. So what is stale? If the check is 3 months से ज्यादा हो, right? Then I've already discussed you. Order और bearer में क्या difference है? Can anybody tell me? मैंने कल बताया है. What's a professional answer? Order and bearer. 2 चीजें बोली थी bearer पे and 1 for order. Yes, ma'am. नहीं, 1 in bearer and 2 in orders. क्या? Bearer check is transfer only by what? And if the check is in And bearer. possession of the bearer, so he can and get it encashed in the. Yeah, और मैंने इसको इस चीज से बोला था कि already केवल on the basis of delivery, the bearer get the checks. Yes, ma'am. Right? And in the case of order, it should be first endorsed and then the delivery should be there. Endorsement and delivery. Right? Yes, ma'am. Right? So bearer instrument, ये मैंने आपसे बात की, an order must be paid to the presenter post verification of the identity. So first endorsement is there and then delivery is there. So I hope order and bearer, you don't have any problem. Endorsement क्या होता है? क्या बेटा? Endorsement. हाँ, endorsement अभी you'll see, अभी endorsement के लिए कि उसका नाम होना चाहिए, उसकी identity होनी चाहिए. Check endorsed होना चाहिए, जैसे I'm paying to Rajesh Kumar, for example. Right? Okay. Since in this module there are a lot of endorsement. जैसे endorsement in blank होता है, endorsement in full होता है, sans recourse होता है, endorsement full like conditional endorsement होता है, वो हम बाद में देखेंगे. अभी के लिए इतना ही. Parties, ये मैंने बता दिया आपको. Drawer, the person who draws, जो check काटता है, drawing, bank and the pay, जिसके favor में check काटा जाता है, the whose favor. Is it clear? Parties to check. Everyone, is it clear? Who is drawer, who is drawee, and who is pay? Right? I'm clear, ma'am. Okay. Features. This is very important point. ये RBI से अगर normally तो बोलते हैं कि if, अच्छा क्या होता है amount in words and figure अगर differ हुआ तो क्या होता है? 15,000 और 50,000 क्या होगा? चेक कैंसिल हो जाएगा मैम. चेक बाउंस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा. Yes, ma'am. राइट? और क्या हो सकता है? क्या पास हो सकता है? पास तो नहीं हो सकता. उस केस में शायद कांटेक्ट करते हैं, शायद मुझे पता नहीं है. See, I'm telling you, RBI गाइडलाइंस होती हैं, अगर बैंक ने केवल वर्ड्स को पढ़ते हुए अगर चेक को पास कर दिया है तो बैंक की गलती नहीं है. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. ध्यान से सुनिएगा. नॉर्मली इट डजंट हैपन दैट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मली बैंक जो है return the check if it's 15,000 and 50,000, right? But RBI said if suppose I'm a customer and I have written 5000, okay, but in words I have written FIFTEEN, and if the bank passes the check on the basis of words, it's okay, because ऐसा बोला जाता है कि आप figures में गलती कर सकते हैं, but words आप you write in all senses, right? Who is Tikeshwar? Okay, so if the amount in check differs in words and figure, the amount in words can be paid. लेकिन
You were asking something, ma'am? What? Nothing, ma'am. बेटा anybody any doubt? मैंने बोला नॉर्मली अगर ये होता है 15 और 50,000 तो रिटर्न हो जाता है चेक. बट इफ द बैंक हैज passed the check on the basis of words, the bank can't be the bank can't be held liable for the same. Right? समझ में आया? Ma'am, you are saying that the concrete words, the concrete thing in the check is words. Words. Yes. Because it's up to you. Because you have written an entire spelling. Come on. You may make a mistake in number, but words में it's not possible. मैम बट जैसे चेक तो 50,000 का है लेकिन उसमें 15 लिखा है तो वो तो 15 ही पेमेंट होगी. कैसे पास कैसे करेंगे उसके बेसिस पे? मतलब See, I'm telling you, RBI डायरेक्टिव्स कहती हैं कि अगर बैंक ने वर्ड्स की बेसिस पर पास कर दिया तो इट्स ओके, क्योंकि वर्ड्स जो है द कस्टमर कॉन्शियसली सही लिखता है अपार्ट फ्रॉम फिगर. बट जेन्युइनली 99% द प्रैक्टिस इज if both are not same, first of all the bank call and confirm the customer and then request him for the corrections. It is just one of the directive that yes, amount and words can be paid off if by the bank cannot be held liable for the same. Is it clear? यस मैम. हाँ मैम, कॉल वाली बात भी वो मैंने सुनी रखी थी. तो इसमें कॉल में क्या होता है मैम, अक्सर जो ड्रॉअर होता है उसको कॉल करती है बैंक के, मतलब बिल्कुल कॉल करती है और एक बार दोबारा से बोलती है आप कि आपने मतलब कि ऐसा ऐसा करेक्शन है एंड देन ही इज कॉल्ड फॉर दैट. बट क्लियरिंग में नॉर्मली इतना कॉल कूल नहीं होता, क्योंकि क्लियरिंग के अंदर ऐसे चेक रिटर्न होके किसके पास जाता होगा? ड्रॉअर के पास या पे के पास? ड्रॉअर के पास. पेई के पास आता है. तो अगर ड्रॉअर के पास जाएगा तो ऐसा कभी सुना है कि इनसफिशिएंट फंड्स के कारण जो चेक्स हैं वो बाउंस हो जाते हैं? सो कई बार पे लिटिगेशन कर देता है कि मैंने 3 बार चेक लगाया, इट गॉट बाउंस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, सो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर ला रहा हूँ. तो अगर रिटर्न जो चेक है, मेमो है, अगर रिटर्न मेमो है, रिटर्न मेमो इज बेसिकली द रीजन वो टेक होता है, एंड अगर वो ड्रॉअर को ही चला गया तो इसका क्या सेंस रह गया इस प्रोसेस का? So it is always it has gone to pay. So the pay, because pay has all the right to take the payment ना, तो पेमेंट नहीं हुई उसकी तो उसको रीजन भी पता होना चाहिए ना. मैम आप बोल रहे हो कि अगर चेक बाउंस हो गया तो वो वापस ड्रॉअर के पास जाएगा ना, क्योंकि उसका ड्रॉअर के पास क्यों जाएगा? रिटन मेमो लिख के वो ड्रॉअर के पास चला जाएगा कि आपका इनसफिशिएंट फंड्स था, आपने बाउंस कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट द चेक इन द क्लियरिंग स्पेसिफिकली. इट्स ऑलवेज ऑन पे. तभी तो होता है, जैसे मान लीजिए मैं पे ही हूँ, मेरे पास 3 बार यथार्थ का चेक आ गया इनसफिशिएंट फंड्स के कारण बाउंस हो के, मैं तीसरी बार तो मैं लीगल समन जाहिर कर दूंगी. आई जस्ट मतलब लॉन्च अ लीगल समन अगेंस्ट यथार्थ दैट ही इज पुलिंग मी. He doesn't have a money in the amount, and despite of that, he is regularly issuing me the checks, and all got bounced. What is this? And I have full evidence with me. मैम तो फिजिकल चेक मैं बोल रहा था, जैसे जो पेई होगा उसको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा बैंक की तरफ से कि ये डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया चेक. तो फिजिकल चेक क्या बात कर रहे हो कि फिजिकल चेक भी पे पास ही जाएगा? Yes. ओह, Right. I hope it is clear. Yes. Okay. और if the check got bounced, आजकल दोनों के चार्जेस लगते हैं. जिसने दिया और बेचारा गरीब पे उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके चार्जेस कट जाते हैं. Right? So, right, मतलब nowadays, if the check is getting bounced, both parties they get penalized from the bank. Right? So for legal entities, check must be signed on the behalf of like this for ABC Enterprises. Have you? Do you have any one of you having a current account with the bank? Please tell me. Anyone having a current account in a bank or कभी operate किया है current account in like that? So whenever suppose
we have a current account, so like हम लोग बोलते हैं for ABC and Sons, नीचे partner और suppose A ने sign कर रखा है, so they're having a stamp, so there's a stamp, rubber stamp, firm name is there, नीचे authorized signatory, director, partner कुछ भी होगा, and in between them you'll have to sign. Is it done? Is it clear? Yes? Is it clear or not? Yeah, ma'am. Clear. Now this is very important. जो मैंने बोला था ना that all checks are bill of exchange, but all bill of exchange are not checks. See, bill of exchange drawn on a person or a firm, right? Always drawn on a bank. Can we draw a check on a firm? No. No, ma'am. Bill of exchange must be accepted. Whether in check you require any acceptance? No, ma'am. Suppose I have given a check to Yatharth. Yatharth give back to me that yes, I have accepted this check. No, ma'am. No, ma'am. Like that? No. A bill can be payable on demand or on expiry of certain period. Ma'am, grace periods. Grace period. Yes. How many days grace period in BOE? Ma'am, 3 days. 3 days. Does you have any grace period in check? The check got bounced and the bank wait for 3 days and then they again present their check. Your check. No, ma'am. No. So that's the major difference. Yes, ma'am. Right. Bill of exchange may not be crossed. May be crossed 0.05%. Obviously, it's an open instrument, but checks they may be crossed. So now signatures. एक चीज और बोलूंगी. Tomorrow. Come on, I need one volunteer. First, tell me the name that yes, you are ready. Yes, ma'am. Tikeshwar, you want to Yes, take ma'am. this? Yes, ma'am. Tikeshwar, tomorrow I just request you to explain everyone in class and including me. I obviously I'll support you, right? About the ma'am. digital signatures, beta. Okay, ma'am. Digital signatures, you find a lot of content. The way you want to present it through PPT, you want to present it through anyhow. You're most welcome. Okay, ma'am. I'll nowadays, try, ma'am. right? Yeah. Yes, Yatharth, tell me. मैम डिजिटल. अच्छा मैम, कल का वो हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर वो मजा नहीं रह जाएगा. ओके. क्या बोलो ना. नहीं मैम, कुछ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बोलना था. वैसे मैम कल ही डिस्कशन होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. हाँ, तो कल करते हैं यथार्थ. ओके, राइट. और इफ यथार्थ दिस वी may have a few. Tikeshwar, you know यथार्थ? Tikeshwar बेटा? Yes, ma'am. You know यथार्थ और यथार्थ you know Tikeshwar? I mean, this group only we have. Apart from this class, we have no contact. So it's okay. So now you'll make a contact and both of you present me on PPT. Ma'am, let's Tikeshwar present it, ma'am, because it will be good that he alone can present. Because it's okay. Then I need a PPT actually. So it's up to you. Tikeshwar, you want to present it all alone? It's up to you, beta. Or do you want to take I have to present tomorrow, ma'am, or I will have some time, ma'am. Sunday? Okay, ma'am. Chalega? Yes, you have ma'am. entire day, Friday, Saturday, and then Sunday. Okay, ma'am. So you want to do it alone or you want somebody as a companion, as you feel comfortable? Okay, ma'am. If I want to, I will talk with one guy who belongs to GTG, ma'am. Okay. Is he right now in class? Yes, ma'am. Who is he? Nilesh, ma'am. Dinesh. Nilesh, ma'am. Nilesh. Nilesh is there? कहाँ गया Nilesh? Nilesh Kumar. Nilesh? अरे आपका दोस्त ने Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nilesh, टिकेश्वर आपकी मदद चाह रहे हैं. वो अमिताभ बच्चन जी नहीं बोलते अमिताभ बच्चन साहब कि आपके एक प्रश्न पर अटक गए, आपकी मदद चाह रहे हैं. तो इट्स ओके. It is now both of your responsibility. You'll have to present me about digital signatures the same way, present it in very formal manner.
Let everyone to be understand. Yes, Nilesh? We'll give a PPT, ma'am. What? PPT दे देंगे मैम डिजिटल सिग्नेचर पे संडे को टिकेश्वर मैं. हाँ. और जैसे भी आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, try to make it Hindi is also allowed from my side, but try to inculcate more English into that, so that it will become a practice session like that also. Suppose you are preparing for an interview or something like that, and I'm there. बिल्कुल support की चिंता मत करिएगा, जहां पर अटकोगे मैं पीछे खड़ी हूँ. Okay, ma'am. राइट टिकेश्वर? ओके, डन. और हम एक्सरसाइजेस करते रहेंगे. ओके एवरीवन? मैम कल क्या है? परसों राखी, परसों बहुत जल्दी तुम्हें भी दूंगी मैं राखी. ओके मैम. ठीक है, चलो. सो सिग्नेचर, वी ऑल नो दैट a check without a signature is invalid. Signature must be correspond to the signatures on the bank record, right? Obviously, suppose in my bank records my sign is like that, Pavandeep Kaur Bindra, full signature. And suppose I have just signed Pavandeep, it's not valid. Even if there is an alteration on the check, I'll have to sign the same way. The same signature should be there, the same signatures, the signatures which are there in my account. Okay? And see, जो legal entities हैं, private limited, partnership, okay, public limited, they must have a seal along with the signatures. Any doubt in these 3 points? Tell me. Yes? No? So now we'll see HIDC और उसके बाद आएंगे क्रॉसिंग पे. बाबा रे, एक ही मॉड्यूल में इतना सारा कैसे पढ़ सकेंगे बच्चे? ओ इंडोर्समेंट भी है, ये मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी आपको. ओके, एनआई मेरे पर जाने दीजिए. देन PIDC इज आल्सो देयर. चलिए, सो आई एम नाउ शेयरिंग एनआई का आपसे वीडियो. ओके राइट, गिव मी 2 minutes. Just a second, give me 2 minutes. एनआई का मेरा भी वीडियो था और मैं आज ढूंढ रही थी, वो मुझे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया. लेट मी सी. वेल, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, एनी डाउट एनीवन? मैम यस, मैंने एक बात बोलना चाह रहा था. बोलिए. जिस टाइम अभी आपने प्रेजेंटेशन की बात करी थी ना, तो वो तो कोई नहीं टिकेश्वर के साथ भी कर लेता, लेकिन मैम इसका थोड़ी नॉलेज थी, तो मतलब ये था कि मेरे को प्रेजेंटेशन देखनी थी. अगर मैं देखूं नहीं तो ज्यादा मुझे बढ़िया लगता है, क्योंकि हाँ, ये था. यू मोस्ट वेलकम. राइट, यस मैम. पीपीटी तो वो प्रेजेंट करेंगे, बस मैं सुनना देखना चाहता था ऐसे बैठ के. हाँ, इट्स ओके. यस, राइट. और कभी कोई होता है ना, somebody wants to self volunteer कि मैम मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, give me some time, 5 minutes, 10 minutes, you're most welcome to ask. सेशन जरूर तुम मेरे बढ़ा लोगे, इट्स ओके. वो मैं बात कर लूंगी. तुमने बोल रखा है मैम हम सनस्टोन खुद बात कर लेंगे, आप चिंता मत करो. हाँ मैम, वो बात कर लेंगे. हम बात कर लेंगे, बस तुम्हारी पहुंच है, तुम लोग की तो बड़े लोग हो. इट्स ओके. बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग खुद इनिशिएटिव ले कि मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा. राइट. So I'm sharing you the video of this NI, okay, a full video of 10 minutes, okay, and then we'll discuss, right? Just a second. Just a second.
So now I'm sharing. Hope you're able to see. No, ma'am. और उसके बाद I'll share you my thing because मेरे को सच बताऊं मेरे को कुछ समझ में नहीं आता when I should see these online videos. मुझे मेरा ही पसंद आता है. Okay, so meanwhile I'm searching by my own also. I hope this is audible. Yes. Audible and we'll do some. Hello everyone, कैसे हैं आप? Yes, ma'am. Right. और उसके बाद आज हम quizzes भी करेंगे. Right. आकाश अंबानी लगा है नहीं. नहीं बेटा ये काम नहीं है उनका. मैम पहले तो एकदम देख के लगा मैंने कहा आकाश अंबानी का इतने अभी नहीं आए मतलब. राइट. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये जरा बात कर लेते हैं कि इसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हमने पहले बात की थी 3 तरह के होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. इसके अलावा किसी को भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते. अब जरा ये बात कर लेते हैं कि इन सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं. तो अगर मैं कॉमन फीचर्स की बात करूं देन फर्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी. जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा दैट इंस्ट्रूमेंट शैल बी ट्रांसफरेबल. और क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इसे कितनी बार ट्रांसफर कर सकते हैं. तो मेरा आंसर ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर किया जा सकता है. ट्रांसफरेबिलिटी में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. और ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं तो इसे ही तो हम नेगोशिएशन कहते हैं. और ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज 2 तरीके होते हैं ट्रांसफर करने के. और हम उसकी बात करें तो फर्स्ट होता है डिलीवरी. किसके लिए होता है? डिलीवरी होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट के लिए. बियरर इंस्ट्रूमेंट वही जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होता उस इंस्ट्रूमेंट को हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. और जिसपे किसी का नाम मेंशन हो तो वहाँ एंडोर्समेंट होता है. और एंडोर्समेंट हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है. यानी कि ये एंडोर्समेंट वो कर पाएगा जिसके फेवर में वो इंस्ट्रूमेंट बना था. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक चेक दूं और उस चेक के ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो और आपके पास वो चेक है और आप उस चेक को फर्दर किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उस चेक को आप नेगोशिएट कर सकते हैं सिर्फ डिलीवरी देकर, क्योंकि उस पे किसी का नाम ही नहीं था तो आपने उसे नेगोशिएट कर दिया डिलीवरी की तरह. लेकिन मैं अगर आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दूं तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको दूंगा उसमें अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो उसे नेगोशिएट करने के लिए आपको अपने साइन करने पड़ेंगे. उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे आपको लिखना पड़ेगा कि आप उसे किसके फेवर में एंडोर्स कर रहे हैं. तो यहाँ क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में हुआ और ये जो बियरर इंस्ट्रूमेंट था ये सिर्फ मैंने बियरर इंस्ट्रूमेंट की यहाँ बात करी तो यहाँ इसे बियरर इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से कह सकते हैं अभी हम इसकी बात करेंगे. तो इसे मैं ज़रा ये कह देता हूँ कि ट्रांसफर बाय डिलीवरी जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बियरर का मतलब जो उसे होल्ड कर रहा है. एग्जाम्पल चेक. अगर चेक पे किसी का नाम ना लिखा हो, सेल्फ का चेक इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है. अब ज़रा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आया इंडिपेंडेंट टाइटल. इंडिपेंडेंट टाइटल का ये मतलब होता है कि जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता है, तो देखिए जो ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरर और जिसके फेवर में ट्रांसफर किया गया उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी. और हम ये बोलते हैं
कि इन दोनों का टाइटल या राइट बिल्कुल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स ने फ्रॉड करके एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया, और मिस्टर एक्स ने उसे ट्रांसफर कर दिया किसको? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई को फ्रॉड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो अब बताइए क्या मिस्टर वाई को पैसा मिलना चाहिए? आप ये बोलेंगे कि सर सेल ऑफ गुड्स में लिखा हुआ है नेमो दैट क्योर्ड नॉन हैबिट, दैट मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ये आपने सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसका एक्सेप्शन है। अगर ट्रांसफरी को वो इंस्ट्रूमेंट मिला है, ऑल्दो ट्रांसफरर का टाइटल का मीनिंग क्या होता है? टाइटल का मीनिंग होता है ओनरशिप। ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन ट्रांसफरी का टाइटल अब डिफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यही कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइटल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ट्रांसफरी को फ्रॉड की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसका टाइटल इफेक्टिव होगा। दैट मीन्स ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव बट ट्रांसफरी का टाइटल इफेक्टिव, और ट्रांसफरी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसा डिमांड कर सकता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सर्टेनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेनिटी रिगार्डिंग अमाउंट, कब पे करेगा, कितना अमाउंट पे करेगा। मैं अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा हो कि मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए करूंगा, सो दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सर्टेन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सू। ये राइट टू सू किसको मिलता है? ये राइट टू सू मिलता है या तो उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर को या उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स को। ये होल्डर कौन होता है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं कि होल्डर कौन है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि जो उस इंस्ट्रूमेंट से लीगली पैसा डिमांड कर सकता है उसे ही हम होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और अब बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइंड है और ये एक प्रोमिसरी नोट का फॉर्म। Hey there. With 28% growth in demand and 2.7 million new jobs, data science is today a top फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है। प्रोमिसरी नोट देखिए किस तरीके से बना। प्रोमिसरी नोट को जिसने बनाया, देखिए ये इसने बनाया है और लिखा क्या है, 60 days आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर द सम ऑफ ₹40,000 ओनली। अब यहाँ 2 पार्टीज आई हैं। 2 पार्टीज कौन कौन? जिसने इसको बनाया है वो है इस इंस्ट्रूमेंट का मेकर, और इसने जिसके फेवर में बनाया है वो बन गया इस इंस्ट्रूमेंट का पे। तो हमेशा हम बोलते हैं कि प्रोमिसरी नोट में देयर आर 2 पार्टीज, फर्स्ट वन इज मेकर एंड द अदर वन जिसे पैसा मिलना है उसे हम कहते हैं पे। और हर प्रोमिसरी नोट के साथ एक स्टैंप ड्यूटी भी लगी होती है। स्टैंप ड्यूटी जो रेवेन्यू स्टैंप की फॉर्म में हम पे करते हैं। यहाँ ये इसका अमाउंट यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 40,000 पे करेगा, और साथ में एक टाइम लिमिट भी लिखी हुई है, द सम ऑफ ₹40,000 ओनली। तो देखिए यहाँ टाइम लिमिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लिमिट कौन सी है? 60 days आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस। तो ये बन गई इसकी ड्यू डेट। ये ड्यू डेट कब से बनेगी? ये ड्यू डेट बनेगी इस डेट से। तो 5 जून को ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो 5 जून प्लस 60 days वो बन जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट। ग्रेस डेज वाला कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा कि कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रेस डेज भी मिलते हैं। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चेक में कभी ग्रेस डेज अवेलेबल नहीं होता। तो यहां इस डेट से हम इसकी मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पार्टीज आई, फर्स्ट वन इज मेकर एंड द सेकंड वन इज पेई। और अगर ये पेई चाहे तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि इस प्रोमिसरी नोट को फर्दर नेगोशिएट कर सकता है।
और वो नेगोशिएट करने का तरीका जो हमने देखा कौन सा, आइदर एंडोर्समेंट और डिलीवरी। तो प्रोमिसरी नोट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जरा इनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर। अगर मैं आपको ओरली कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए पे करूंगा, 2 लाख रुपए पे करूंगा, तो वो प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में तब आएगा जब वो रिटर्न फॉर्म में हो और साथ ही साथ साइंड हो, किसके, मेकर के। ये रिटर्न फॉर्म में किसी पेपर पे हो और उसके साथ रेवेन्यू स्टैंप पे की हो, जिसे स्टैंप ड्यूटी हम कहते हैं। और प्रॉमिस या अंडरटेकिंग टू पे हो, दिस मस्ट बी ए अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना रिक्वायर्ड है। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस क्या होता है, यानी कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें शादी के बाद पे करूंगा, यानी कि जब ए की शादी बी से हो जाएगी, बी की शादी सी से हो जाएगी, और वॉट एवर इट इज, या ऐसी कंडीशन जब लगाई जाएंगी ना, इसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इसके सीएम बनने के बाद, इसके हीरो बनने के बाद, ऐसी कंडीशन के प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकते, क्योंकि वहां कंडीशंस आ गई हैं और अनकंडीशनल होना चाहिए। गुड्स के अराइवल के बाद पे करूंगा, सेफ अराइवल के बाद, ये एक कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन के साथ प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाया जा सकता। दैट मस्ट बी अनकंडीशनल एंड मनी एंड सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में ही वो कंसिडरेशन पे होगा। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मुझे गुड सप्लाई किए, मैं बदले में आपको मोबाइल फोन सप्लाई करूंगा, क्योंकि मोबाइल फोन्स मनी नहीं है और मोबाइल फोन देने के लिए प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता। दूसरी बात, सर्टेन सम ऑफ मनी हो, आइदर मैं आपको 2 लाख रुपए करूंगा या मैं आपको 5 लाख रुपए करूंगा, यहां ये सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है। क्लियरली लिखा हो, मैं आपको 2 लाख रुपीज पे करूंगा, लिखा हो कि मैं आपको 5 लाख रुपीस पे करूंगा। सर्टेनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज हो। पार्टीज कौन, पे एंड मेकर। जरा सोचिए, इस इंस्टेंट में ये लिखा होता कि या तो मैं मिस्टर एक्स को पे करूंगा या मैं मिस्टर वाई या मिस्टर जेड किसी को भी पे कर दूंगा, तीनों में से किसी को पे कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। सर्टेनिटी ऑफ द पार्टी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर जॉइंटली आप पे कर रहे हैं तो इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यहां हमें ये देखना है कि जिस पार्टी को पेमेंट मिलना है दैट पार्टी मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन अदर देन ए बैंक और करेंसी नोट, प्रॉमिसरी नोट बैंक या करेंसी नोट से अलग होता है। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमें आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 पढ़ने की जरूरत है, जिसमें ऐसा प्रोविजन है कि कोई भी प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं हो सकता। जरा देखिए नोट पे क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इज सम रुपीज 100, या 50 लिखा होता है या 20 लिखा होता है। ऐसा किसी भी प्रॉमिसरी नोट पे नहीं लिखा हो सकता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ऐसा करने से तो आरबीआई की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई के पास ही ये राइट होता है। जो आरबीआई का गवर्नर लिखता है कि मैं आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इज सम रुपीज 5, 10, 20, 50 वॉट एवर इट इज। सो प्रॉमिसरी नोट इस तरीके से नहीं बन सकता। इसके साथ साथ यानी कि पार्टी का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा। इसके साथ साथ पेबल टू बियरर और ऑर्डर। देखिए, बियरर की तो मैंने अभी बात की कि बियरर की अगर पोजीशन की बात करूं तो ऑर्डर तो अलाउड है, लेकिन कोई भी प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं बन सकता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसकी परमिशन देता था, बट आरबीआई एक्ट इसकी परमिशन नहीं देता, इसलिए कोई भी प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं बन सकता। So friends, this was the concept of promissory note and the features of negotiable instrument. Stay tuned for more videos. Thank you so much. So that was, some features were there which you need to be see to this, right? And thereafter, do you have any doubt in any point? You may ask. Any doubt in any point? बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी, right to sue and all that. Tell me. No, ma'am. No. So, see, अगर मैं NI की बात करूं तो NI इससे बेटर तो
जहां तक हमने एनआई किया है, इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. राइट. सो इवन मैं अपना एनआई देख रही थी कि यार मैंने इसके अंदर ज्यादा पढ़ाया है और ये एनआई में इतना कम क्यों? यस, एनआई वीडियो 1 आई एम हैविंग एंड इवन एनआई वीडियो 2 आल्सो आई एम हैविंग. So this video is of 36 minutes. Just a second. आपको features तो I hope you have get that it's an unconditional promise and all that, right? मैम एक केस होता है जिसमें मेकर और ड्रॉअर दोनों अलग अलग बिल्कुल हो सकते हैं. जैसे यस मैम, क्योंकि नॉर्मली तो मेकर और ड्रॉअर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन केस पता था बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग हो जाते हैं ना कई बार. यस मैम. हाँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता कोई और है और इशू कोई और होता है. हाँ जी, राइट. आप एक चीज और, जस्ट अ सेकेंड, मैं 2 मिनट, वी हैव टाइम. कितना टाइम है मैं वो देख रही हूँ, सो दैट वी हैव टाइम. अब आपको मैं अपनी आवाज सुनाती हूँ और फिर डिस्कस करते हैं. 2 मिनट रुको. मेरी आवाज सुनना चाहोगे तो? Yes. Just a second, we'll have to do some. Just a second. आपको कंसिडरेशन तो समझ में आ गया, ओके? एंड देन फीचर्स. ओके, जस्ट अ सेकेंड. You're able to see. You're able to see features लिखे आ रहे हैं, unconditional order, time of payment, pay amount, right? So मैंने इसको थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बिकॉज काफी चीजें मैं समझा चुकी हूँ, राइट? बहुत ध्यान से सुनिएगा. आई एम टेलिंग यू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट? दिस इज माय वॉइस. आई होप अब आपको बताइएगा आपको समझ में आया या फिर नहीं, एंड देन विल डू सम क्विजेस. क्रॉसिंग को हम पूरा एक दिन देंगे, इंडोर्समेंट को देना पड़ेगा बॉस, हमारे पास कोई चांस ही नहीं है. ध्यान से सुनिए. क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे खाते में पैसा ही नहीं था और तुमने ऐसा कर दिया, ठीक है? So I hope this is clear. See, I'm giving this lecture in a very, very simple term, in a very, very simple language without using any, जिसको बोलते हैं ना flamboyant words, नहीं मैं बोल रही हूँ, so that आपको समझ में आए. जब हो सकता है आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले ये लेक्चर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, and then later on you refer the book, you will find it. स्टैंपिंग बहुत जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स में. स्टैंपिंग चेक में जरूरी नहीं है. चेक में अगर करंट अकाउंट होता है तो ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में स्टैंपिंग होनी बहुत 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 जरूरी है. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइटल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज बड़ा ध्यान से सुनना. दैट नेगोशिएबिलिटी confers an absolute and good title on the transferee. Absolute and good title on the transferee. अब होता क्या है, ठीक है? We'll see. The title of the receiver will be absolute only if he has got the instrument in good faith and consideration. बहुत जरूरी है. हमने बोला नेगोशिएबिलिटी मींस ट्रांसफर होता है ए से बी. पवनदीप ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने ए को दिया, ए ने डी को दिया, ठीक है? लेकिन जो भी ले रहे हैं रिसीवर, उनको गुड टाइटल तब मिलेगा जब उन्होंने ये गुड फेथ में लिया और विद कंसिडरेशन लिया, तभी गुड टाइटल. ओके, the receiver should have no knowledge of the previous holder having any defects in this title. Such person is called HIDC, which is holder in due course. मेरे को पता है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देगा, दोबारा से करते हैं एक एग्जांपल के साथ. ये एग्जांपल समझ में आते ही ना बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो सपोज अगर बात की जाए, ठीक है,
सपोज ए ने बी को दिया, ठीक है, सपोज एक बात करते हैं, सपोज एक्स ने परचेज किया है एक आर्टिकल, ठीक है, बुक ली फ्रॉम वाई, ठीक है, कुछ भी लिया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लिया वाई से, कोई चीज ली, और एक्स ने पूरा उसे फुल वैल्यू दिया, कंसिडरेशन पे लिया, ठीक है, फुल वैल्यू दिया, सपोज वो 1000 रुपए की थी, उसको 1000 रुपए दे दिया, लेकिन वाई ने वो बुक चोरी किया था जेड से, मतलब वाई क्या था, चोर, ठीक है, और ऑब्वियसली अब वो किसके पास चली गई चोरी वाली चीज, एक्स के पास, ठीक है। सो अगर मैं खाली ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं तो इसके अंदर एक्स भी चोर होगा बेसिकली, क्यों, क्योंकि उसने चोरी का चीज ली है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर उसको नहीं पता कि वाई ने उसको ये चोरी वाली चीज दी है, ठीक है, और उसने उसको प्रॉपर कंसिडरेशन दिया है, तो उसको एब्सोल्यूट टाइटल और गुड टाइटल मिलेगा, और उसको हम बोलेंगे HID से। दोबारा से, एक्स ने वाई से, तीन पार्टीज हैं एक्स वाई जेड, एक्स ने वाई से कोई आइटम लिया 1000 रुपए का, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी या नेगोशिएशन दोनों में तुम डिफरेंस सुनो। अगर मैं ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं तो एक्स ने वाई से आइटम लिया, अगर मैं ट्रांसफरेबिलिटी की बात करती हूँ, एक्स ने वाई से आइटम लिया, वाई ने जेड के घर से चुरा लिया था, तो ऑब्वियसली एक्स भी उसी फुटिंग पर आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली जिसके पास चोरी का माल वो भी चोर। लेकिन अगर इसके अंदर एक्स को नेगोशिएबल, सपोज नेगोशिएबिलिटी का मतलब है कि अगर एक्स को ये नॉलेज नहीं है कि देयर एग्जिस्ट अ डिफेक्ट इन द टाइटल, ये चोरी की चीज है, प्लस उसने उसका कंसिडरेशन दिया है, तो उसको HIDC बोला जाएगा, और उसको एब्सोल्यूट अ गुड टाइटल मिलेगा, दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। So that is why it is very important to understand, ठीक है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है गुड टाइटल लेने के लिए, ठीक है, गुड फेथ में लेना, विदाउट एनी विदाउट नो, मतलब मैं नहीं जानती कि जो मैं चीज ले रही हूँ वो चोरी की है, मैं तो गुड फेथ में ली है और मैंने उसका पूरा पैसा दिया है, फ्री में नहीं ली है, so then मैं HIDC कहलाऊंगी, which is holder in due कोश, ओके, ये भी है टॉपिक तुम्हारे HIDC, हम थोड़ा सा और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। See now we'll understand about the types। अभी हमने तो स्टार्टिंग में 10-15 मिनट का, जो 15 मिनट का डिस्कशन किया, हमने बात की अभी तक फीचर्स, पेबल टू ऑर्डर, बेयरर, देन HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके टाइप चेक करें, ठीक है। सो ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बेटा दो टाइप के होते हैं, बाय स्टेट और बाय कस्टम। बाय स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, और बाय कस्टम में पुराना आप सुनते होंगे, हुंडीज होती हैं, रेलवे रिसीट्स होती हैं, ऑल दैट। सो नाउ व्हाट इज चेक? चेक तो आई होप यू ऑल आर फैमिलियर, फिर भी according to section 6, a check is bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, ठीक है। एक मैं आपको वो देना चाहती हूँ, जस्ट फाइंड इट आउट, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि सारे चेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज हैं लेकिन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक्स नहीं होते, ऐसा क्यों है? जस्ट फाइंड इट आउट, ठीक है, we'll discuss in our live class। So check is bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable। दो चीजें, चेक जो है आपको स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉन करना होता है, चेक होगा ना, या तो SBI का होगा, ICICI का होगा, HDFC का होगा, ठीक है। So always payable on demand, ये तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, ठीक है। डिमांड, आप जब तक डिमांड नहीं करोगे बैंक से, वो आपको पे थोड़ी करेगा। ड्रॉर में अगर चेक पड़ा हुआ है, बैंक को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि इसको आपको इन कैश करना है या ट्रांसफर करना है। सो दैट इज अबाउट चेक। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द चेक। It should be clearly dated and unconditional order. Obviously, the check should be unconditional. ऐसा नहीं लिखा जाता दोबारा से कि pay to Ram, okay, when monsoon arrives, ऐसा कुछ नहीं हो। आप किसी को चेक लिखते हुए थोड़ी करते हो कि आप इसको तब पे करो जब मेरा ये काम हो जाए, नो, ठीक है। So it should be, it's an unconditional order. It should be clearly dated. पहले भी बात की थी, पोस्ट डेटेड नहीं होना चाहिए, अनडेटेड नहीं होना चाहिए, और इम्पॉसिबल डेट्स नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ,
कई बार है ना, आजकल वो फैशन आ गया, आजकल कई लोग लिखते हैं, ठीक है, 2020 ऑब्लिक, फिर डालते हैं मंथ और फिर डालते हैं डेट। चेक बाउंस नहीं होते, वैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वो वेस्टर्न अंग्रेजी कल्चर आ गया है कि पहले ईयर लिख दो, फिर महीना लिख दो, फिर डेट लिख दो, ठीक है। नॉर्मली उसको लिखने का तरीका यही है, पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आ जाए। तो चेक अनडेटेड नहीं होना चाहिए, पोस्ट डेटेड नहीं होना चाहिए और स्टेल नहीं होना चाहिए। ओके, स्टेल मीन्स 3 महीने रिसेंट वाला ही होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। नो इम्पॉसिबल डेट्स, सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इम्पॉसिबल डेट्स नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया 30 फरवरी नहीं हो सकती। और क्या चाहिए, सिग्नेचर्स चाहिए। ओके, सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, और सिग्नेचर्स भी वही चाहिए। सपोज मेरा खाते में नाम है पवनदीप कौर बिंद्रा और मैं साइन करती हूँ पवनदीप कौर, गलती से मैंने साइन कर दिया पवनदीप कौर बिंद्रा पूरा, ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, सिग्नेचर मिसमैच से वो बाउंस हो जाएगा। तो जो खाते में सिग्नेचर है वही होने चाहिए, ठीक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारे हाथ थोड़े से कंपन चालू हो जाता है, हमारे सिग्नेचर्स चेंज हो जाते हैं। तो उसकी भी सिस्टम है, व्यवस्था है कि आप कभी भी अपने सिग्नेचर चेंज भी करा सकते हैं। एक नॉर्मल सा है, सिग्नेचर चेंज का एक फॉर्म आता है, वो आप कराइए और उसके बाद आप यू कैन कैरी ऑन योर वर्क। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर शुड बी सेम, 50,000 in words, and in words figure in 50,000 and in words you have written 15,000 only. Obviously it's a mismatch, it's a big mismatch. Normally 99.99% बाउंसिंग होती है, और अगर मान लीजिए बाउंसिंग नहीं करते और केवल जो वर्ड्स में लिखा है उससे पास कर दिया, तो भी आप बैंक को कुछ क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा बोला जाता है जब आदमी FIFTEEN 15,000 लिखेगा तो उसने अपने होशोहवास में लिखा है, बट इट शुड बी सेम। नॉर्मली बाउंसिंग हो जाती है अगर ना। नाउ देयर आर 3 पार्टीज। ड्रॉर, मेरा चेक है, ठीक है, ICICI बैंक का, और मैं बी को दे रही हूँ, तो पवनदीप कौर बिंद्रा ड्रॉ होगी जिसके सिग्नेचर्स आए, मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉई होगा ICICI बैंक क्योंकि उसका चेक था, ठीक है, और पेई होगा बी जिसको मैंने, जिसके फेवर में चेक ड्रॉ की। ड्रॉर जो साइन करता है, ड्रॉई जिसका चेक होता है, आई मीन बैंक, पेई जिसको आपको अमाउंट देना होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, so now the next is about a bill of exchange. Bill of exchange is defined as an instrument in writing. See, आपको सब में दिखाएगा instrument in writing, ये तो पहला फीचर ही है। Containing an unconditional order again, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of the certain person or to the bearer of an instrument. I hope आपको ये definition, अब हमने इतना कुछ example किया है, आपको समझ में आ गई होगी। See the important words: writing, unconditional order, signed by the maker, maker is a drawer, directing a person means और a जो भी है drawee, to pay certain sum of money, ठीक है, अमाउंट तो चाहिए, to the order or the bearer. Endorse, order means endorsement and delivery, bearer means मेरी डिलीवरी से काम चल जाएगा, ठीक है, it's okay. So now some of the features. It should be a sign by drawer. Obviously चाहिए drawer के sign, और writing में होना चाहिए, it's understood. Drawer and amount must be certain. दोबारा से वही चेक का, चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं, ऊपर सबसे ऊपर डेट, ठीक है, अमाउंट, सिग्नेचर, ठीक है, पे, 4 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ओके, प्रॉपर्ली स्टैम्प, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैंपिंग होनी जरूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट वैलिड। ओके, the amount stated on bill should be paid on demand or an expiry of a fixed time. Obviously it should be payable on demand, ठीक है। So now the promissory notes. Now we'll discuss about something about a promissory note.
So it contains unconditional order. See, bill of exchange और check क्या थे? Unconditional order. वैसे unconditional order है, आप unconditional promise भी बोल सकते हो. To pay a certain sum of money to a certain person, it will be assigned by the promisor. Promisor बोल दो, promissory note में, maker बोल दो, bill of exchange में, drawer बोल दो, check में, मतलब वही है जो sign करता है, जो देता है. Drawing जो बैंक है या जो भी पर्सन है. पे जिसके फेवर में. फीचर्स राइटिंग. एक्सप्रेस प्रॉमिस पब्लिक अनकंडीशनल प्रॉमिस बहुत जरूरी है. आई प्रॉमिस टू पे यू 5,000 रुपीज व्हेन आई गेट मैरिड. ऐसा नहीं हो सकता. ओके. साइन बाय द मेकर. पे मेकर एन अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. सी ये टॉपिक है ना, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है. अगर आप बोलो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 3-4 चीजें पढ़ी हैं. ठीक है. ये सर्टेन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ऑर्डर, बेरर, पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए. हमने सब में सेम पढ़ा. ठीक है. यू नो, ड्रॉअर और अ प्रॉमिसर हु मेक्स ड्रॉइंग वन इन फेवर द नोटिस ड्रॉन. पे इसके फेवर में. ये 3 पार्टीज भी तीनों में एक ही. So now let us see the differences between the check and bill of exchange. दोबारा से मैंने क्या बोला था? All checks are bill of exchange, but all bill of exchange are not checks. ऐसा क्यों होता है? Just find it out. We'll discuss. कुछ तुम भी करोगे ना, obviously. So now difference ना मैंने 2 चीजें ऊपर में छोड़ दी थी. Obviously पहले तो आप इनकी definition से difference करोगे, फिर इनके sections अलग हैं, वो 5-6 of 1881. तो वो 2 differences ये हो गए. तीसरे डिफरेंस से चालू करते हैं. ये 3 महीने के लिए वैलिड है. बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कोई स्टेल वाला चक्कर नहीं होता. पेबल टू द बेरर ऑन डिमांड. यहाँ पर तो ऑलवेज इट कैन नॉट बी पेबल ऑन डिमांड एज पर आरबीआई एक्ट. ग्रेस पीरियड. चेक में कोई ग्रेसिंग नहीं होती. ऐसा थोड़ी होता है जैसे चेक आपने डाला, क्लियरिंग के लिए गया, कुछ सपोज फंड्स नहीं है तो बैंक आपको ग्रेस दे देगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमने अपने पास रखा है, 3 दिन बाद डाल देना, हम कर देंगे. नो, वो इमीडिएटली बाउंस होगा. बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको 3 दिन का ग्रेस मिलता है. 3 days grace you will get in bill of exchange. Now acceptance. A check does not require acceptance. आपको एक्सेप्टेंस नहीं देनी होती है. मान लीजिए पवनदीप ने बी को चेक किया तो मैं एक्सपेक्ट थोड़ी करूंगी कि बी मुझे लिख कर दे कि मैंने आपको चेक दिया. ठीक है, सर्टेन केसेस में कुछ ग्रीवेंसेस होता, ठीक है, बाकी नहीं. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नीड्स टू बी एक्सेप्टेड. ओके. स्टैंपिंग. चेक में स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो अलग बात है कि ठीक है पार्टनरशिप का ये रूल होता है बैंक्स में कि अगर पार्टनरशिप का खाता है या फिर मान लीजिए कोई करंट खाता है और कैश विड्रॉल के लिए स्पेशली आ रहे हो तो आपको स्टैंप चाहिए. ठीक है, बाकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. लेकिन हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज तो बिना स्टैंपिंग के वैलिड ही नहीं. क्रॉसिंग चेक की होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं. अब आप बोलोगे क्रॉसिंग क्या है? ये वैसे पूरा टॉपिक है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा. बेटा क्रॉसिंग मीन्स 2 ट्रांसपोज लाइंस होती हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो कभी नहीं मिलते, वैसे ये पैरेलल लाइंस होती हैं. अगर कोई चेक क्रॉस हो गया इसका मतलब है कि आप उसको अब आप कैश नहीं कर सकते. यू नॉट एबल टू इनकैश इट. अगर आपने क्रॉसिंग किसी को क्रॉस चेक दिया बैंकर को और आप बोलें कि जाकर टेलर पेमेंट पर कि 10,000 रुपए का चेक है आप मुझे दे दें, तो आपको बोलेगा, सजेस्ट करेगा कि नहीं, या आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप अपने खाते में इसका फंड ट्रांसफर कर दीजिए, बट हम आपको हार्डकोर पैसा नहीं दे सकते इसके बदले. सो दैट इज क्रॉसिंग. ड्रॉइज में कौन होता है? चेक में बैंक होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में पर्सन भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है. नोटिंग. If the check is dishonored, it cannot be noted. If the bill of exchange is dishonored, it can be noted. ये हम लोग further on will see also. So I hope अभी तक आपको समझ में आया होगा what we have studied. Now this is the next one. Is a cases which is again a very interesting and a normal topic, but hence like you should know the cases where banker must refuse payment. मैंने बोला था ना, एक आपको ऑब्लिगेशन है that it's obligation of the banker to honor the check, but there are certain cases जहाँ पर बैंक को रिफ्यूज करना पड़ता है कि भैया हम पेमेंट नहीं करेंगे. वो कौन से केसेस है? When the drawer countermands payment. Countermands means drawer ही ना चाहे. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ड्रॉअर नहीं चाहेगा
सपोज मैंने चेक काटा लेकिन मैं फिर बाद में स्टॉप कर लेती हूँ कि भैया मेरे को नहीं करवाना, तो ऑब्वियसली जहाँ ड्रॉर की इच्छा नहीं तो बैंक कौन होता है पे करने वाला, देता तो ड्रॉर। मैंने किसी को चेक दिया, पवनदीप कौर ने, मेरी डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली मान लीजिए मेरे नॉमिनी पहुंच जाते हैं कि भैया इनकी डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट है, तो उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए जो अकाउंट होता है उसमें फ्रीज लगा दी जाती है, डेबिट फ्रीज मीन्स कुछ पैसा निकल नहीं सकता, तो डेबिट फ्रीज लग गई और फिर चेक आया तो ऑब्वियसली नहीं होगा पे। इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ये तो लीगल कंडीशंस हैं क्योंकि वॉइड हो जाता है। गार्निश की ऑर्डर तुम पढ़ चुके हो, मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, और मेरे खाते में सपोज 3 बजे 11 अक्टूबर को 3 बजे मेरा गार्निशी ऑर्डर लग गया, ठीक है, 3:30 बजे चेक आता है, तो ऑब्वियसली गार्निशी ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने पढ़ा था इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक टू ऑनर द चेक, बट योर ऑब्लिगेशन एकदम डिसरिगार्ड हो जाता है व्हेन यू रिसीव दिस गार्निशी ऑर्डर। तो गार्निशी ऑर्डर लगता ही बैंकर बोल देगा भैया फ्रीज है, वी आर नॉट एबल टू पे यू। स्टेट चेक 3 महीने पुराना। So now tell me, I just want to get it clear that you're able to understand what I'm saying in this, right? Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियरली सब समझ में आ रहा है जो केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? गार्निशिंग ऑर्डर एक बार मेरे को बता पता था दीजिए। तुम्हें बोलोगे गार्निशी ऑर्डर आपके मॉड्यूल में अभी तक नहीं है। 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर। आई एम टेलिंग यू, जैसे मुझे बोला गया ना कि ये इतनी जल्दी क्लासेस निपटानी है या फ्री कोर्स हो रहा है, तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। गार्निशी ऑर्डर जो होता है बेसिकली कोर्ट लगाता है। देयर आर 3 पार्टीज, जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर एंड जजमेंट डेटर्स। एक जिसने फ्रॉड किया, सिंपल लेमन लैंग्वेज में, एक जिसने फ्रॉड किया, दूसरा जिसके साथ फ्रॉड होता है, और तीसरा बैंक, राइट? और तीसरा पार्टी बैंक, कोर्ट, राइट? सो गार्निशी ऑर्डर के बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, ऑर्डर नेसी एंड ऑर्डर एब्सोल्यूट। केवल अभी समझ लेना, इट्स नॉट इन योर मॉड्यूल, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली लीन लगा दिया जाता है, फ्रीज लगा दिया जाता है, ठीक है, और वो फ्रीज क्या कोर्ट के उससे लगाया जाता है। जब किसी के साथ फ्रॉड होता है वो कोर्ट के पास जाता है कि उस बंदे ने फ्रॉड किया, उसका अकाउंट वहां पर था, तो फ्रीज लगा दिया गया, और फिर कोर्ट के ऑर्डर से उसके फंड्स जो है वो मूव होके कोर्ट के पास चले जाते हैं। आगे बैंक का आता पता नहीं, कुछ नहीं पता, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स करता है वो कोर्ट टेक ओवर कर लेता है। दैट इज गार्निशी। एंड अटैचमेंट ऑर्डर इज, जब तुमने कभी देखा होगा ना इनकम टैक्स के ऑर्डर्स आते हैं कि फिर आना द पर्सन हैज नॉट पेड 3,36,000 ऑफ टैक्स, तो रिकवरी आई है बॉस। सो इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर हमने तो खूब बनाए हैं, और लोगों ने हमें बहुत बोला भी है, सुनाया भी है, क्योंकि फॉर दैट सपोज आई रिसीव अ इनकम टैक्स ऑर्डर फॉर एनी पर्सन, ओके, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई कॉल द कस्टमर, सर ये इनकम टैक्स वालों का एक ऑर्डर आया है, आपने इतने की चोरी की थी तो हम आपके अकाउंट से डेबिट करके दे रहे हैं। नो, if everything is okay, you find the orders, you have checked in the IDs, it is your courtesy that you may call, you may not call, but the income tax guys, they need DD, they payment, क्योंकि आप नहीं दे रहे, वो कहीं से भी लेंगे ना, कम ऑन, आप ही चोरी कर रहे हैं आप। सो दैट इज अटैचमेंट ऑर्डर। समझ में आया? गार्निशी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, राइट? यस और नो? राइट। सो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जाते हैं। ये मैं अपने लिए और जहाँ पे पढ़ाती हूँ उनके लिए भी बनाती रहती हूँ। डिसऑनर हम बाद में बात करेंगे। सो आई एम जस्ट यहाँ पर हम, अच्छा, आप टेल मी, आप लोग YouTube में भी वीडियोस देखते होंगे, ओके? एंड यस यथार्थ, यू वांट टू से समथिंग? यथार्थ? Yes, ma'am. Ma'am, what are the valid date formats? It is DD, MM, YY. It is okay. YY, MM, DD. It is okay. And MM, DD, YY. Is that okay? MM, DD, YY is perfectly okay. It's fine. मैम अगर किसी ने डेट लिखा है 9/6/21, तो मैम अगर आप उसको देखोगे तो अगर मंथ 6 ले लिया तो स्टिल चेक हो गया, और अगर MMDDYY में नहीं, वो उसके अंदर स्पेसिफाई करेगा ऊपर MMDDYY लिखकर, क्योंकि ऑब्वियसली वो पढ़ेगा, वो वैसे ही पढ़ेगा। हाँ, ऐसे तुम लिख दोगे, वो महीना ही नहीं आता, वो डेट ही नहीं आती, राइट? अगर हल्की सी भी एम्बिग्यूटी होगी तो मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल वो कैंसिल होगा। ओके।
राइट? ठीक है, वो विल हैव टू स्पेसिफाई डीडी एमएम बाय और वो आप ऊपर लिख कर रिव्यू में, कई बार आपने देखा होगा चेक्स करा के कई बार काट के लिख दिया जाता है नॉट अबव 1 लाख, कहीं आपने चेक्स देखे होंगे नॉट अबव 1 लाख, नॉट अबव 50,000. सो इट मींस दैट उन्होंने एक लिमिट कर दी है कि बॉस अगर इसके ऊपर का चेक आता है और अगर आप पास कर रहे हो तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैं तो लिख चुकी हूँ कि 1 लाख के ऊपर नहीं देना चाहती मैं इस चेक के अंदर. Okay. Right? So this is all, everything is doable in check. So NI is very important topic. Whenever you attend any bank interview, I can guarantee you, I can write on stamp paper, ढंग का बैंक है और अगर ढंग का इंटरव्यू है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि NI KYC या इसका AML का क्वेश्चन ना आए. ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं पूछा जाए HRDC क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता PIDC क्या है. What is PIDC? A very, very basic logic questions, very logical questions they may ask. Crossing, अब बहुत जल्दी से, अब crossing क्या है? Crossing के crossing बहुत जल्दी से निपटाई है और मैं निपटाऊंगी भी बहुत जल्दी से आपको. But I had made crossing 2 videos as far as an NI is concerned. क्योंकि हम मतलब obviously when I'm teaching to MBA kids, so they need some extra thing. So that's the reason मैं आपको सब कुछ बताती रहती हूँ. थोड़ा सा आपको ऑनलाइन दे दिया, थोड़ा सा अपना फ्लेवर दे दिया, थोड़ा सा मॉड्यूल करा दिया, क्विजेस करा दिए, राइट? सो दैट्स द रीजन. तो आज हमने NI में जो भी पढ़ा है और आपको पता है NI के बाद व्हाट इज देयर, क्रॉसिंग और एंडोर्समेंट रह जाएगा और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टू अनदर लेक्चर, क्योंकि अब हमें BFSI करना है. मैं क्योंकि ये आधा रह जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है, राइट? सो आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग? बस ये बता दो मुझे, जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वो पढ़ते चले जाओ, बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है. बिकॉज माई अल्टीमेट पर्पस इज टू मेक यू रेडी फॉर इंटरव्यू फॉर प्लेसमेंट. माई पर्पस इज ये नहीं है कि कितने नंबर आएंगे सनस्टोन में, मैंने ये सब करना ही नहीं है. एज सिंपल एज दैट, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब जैसे गार्निशी अटैचमेंट अभी तक तो आया नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेटा गार्निशी ये होता है, अटैचमेंट ये होता है, right? So any question, anyone, you may ask. You're most welcome to ask. तो आज हमने NI छोटे, मेरे ख्याल से हमने आज कितनी स्लाइड्स की होंगी, 4+ स्लाइड्स की होंगी. और उसके अंदर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम HRDC की बात करते हैं, कंसिडरेशन की बात करते हैं, गुड फेथ की बात करते हैं, इफेक्टिव टाइटल की बात करते हैं, नॉट हैविंग डिफेक्टिव टाइटल की बात करते हैं. सो वी टॉक अबाउट, सो दीज वन टर्म. आपको क्या लगता है, क्या जैसे इंडोर्समेंट मेरे से पूछा, मैम इंडोर्समेंट क्या होता है? पॉसिबल नहीं है इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन करना. इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक. लेकिन हाँ, एक लेमन लैंग्वेज में आई कैन टेल यू, right? So whatsoever I'm sharing with you, okay, and then you just see the modules or videos, then only you're able to understand. Acha, come on, switch on your cameras everyone. I'm saying you goodbye.